and I'm an athlete. I'm a distance runner. I'm a 3 and a 5 kilometer runner, and I'm a lawn tennis player. And उसके अलावा I'm a painting artist. That's really good to hear, and especially because you're so young, it's so inspirational for people to, see that you're doing so much. Thank you. Okay, so as yeah, sorry. नहीं, nothing. Go ahead. Okay, so obviously there's a lockdown. So do you want to tell people what's been your lockdown routine? What's been your motivation to, work during lockdown? Okay. Motivation to okay. I am right now. I'm preparing for a few exams. तो इसके लिए मेरा काफी सारा time I'm mostly studying and उसके अलावा ये है कि या मेरे को अपना एक रूटीन बनाना है तो माय डैड वेक्स मी अप एट 6 o'clock एवरी डे एंड फिर पूरे मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल रूटीन नथिंग ऐसे बट आई जस्ट लाइक टू वेक अप अर्ली सो दैट आई एम एबल टू स्लीप जल्दी रात को एंड बस Yeah, बेसिक हेल्थ एंड एक्सरसाइज और उसके अलावा पढ़ाई that's एंड good. पेंटिंग So what are you studying? You're saying you're studying. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लॉ आई एम गिविंग क्लैट कॉमन लॉ ये एप्टीट्यूड टेस्ट so I'm Oh, that's preparing for that. interesting. Yeah. That's good. Okay, so moving on, how do you stay like motivated? What keeps you motivated to do so many things? um मेरा जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस टाइम पे माय मेन आइडिया वाज कि आई डोंट वांट टू स्पेंड मेरा सारा टाइम ऑन माय फोन और माय लैपटॉप तो दैट Mm-hmm. इज व्हाई मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मेरा लैपटॉप एंड फोन का टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिया सो दैट आई एम एबल टू पुट माई सेल्फ इन अदर एक्टिविटीज तो उसकी वजह से अब मैं आई एम एबल टू स्पेंड बहुत सारा टाइम स्टडिंग साथ में आई कैन Mm-hmm. कॉन्सेंट्रेट ऑन पेंटिंग एंड उसके साथ ही जो बाकी टाइम बचता है आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ मेरा फिटनेस का रूटीन एंड बाकी जो सुबह उठने वाली चीज है बिकॉज अगेन आई एम फौजी पेरेंट्स तो इसलिए आई डोंट गेट अ चॉइस इन दैट आई हैव टू वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे एंड रात को भी लाइट्स ऑफ टाइम फिक्स्ड है तो एट 10:30 11 मैक्स आई हैव टू स्लीप But that's good that you have like a set routine. या एक्चुअली इट इज Yeah, it's better than being on your phone and laptop all day. Okay, so moving on, if you could meet your, 13-year-old self, what advice would you give to her? एक्चुअली 13 ईयर ओल्ड को मैं मतलब myself when I was 13 तो I don't know I was the same I was absolutely जैसे मैं अभी हूँ just that कि तब मैं fitness में ज्यादा नहीं थी and I used to eat a lot so the one thing which I would Yeah. want to tell my 13-year-old self would be कि okay stop eating and start exercising because you need that. Yeah. Why is exercise so important to you? Has it always been important to you, or has it been because of your parents that it's become so important? नहीं not really because of my parents see जब अगेन जब मैं 13 ईयर ओल्ड थी तो उस टाइम पे बिकॉज मैं काफी ओवरवेट थी तो इसीलिए मेरे अंदर मैं आपको प्रेजेंट करने का आगे किसी के तो उसके बाद में व्हेन आई केम टू 11th 10th एंड 11th तब आई रियलाइज कि आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ नहीं तो फिर मैं काफी शाई पर्सनालिटी की तरह बिल्ड होंगी तो इसीलिए Mm-hmm. मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग आउट बिकॉज ऑफ दैट एंड उसमें मेरे डैड ने मेरी हेल्प की थी सो आई थिंक That's फिटनेस इज good. सो दैट आई कैन बिल्ड मेरा कॉन्फिडेंस That's good. That's good to hear. And like, obviously, we can see your confidence throughout your roadies journey. We saw that, and it was really good to see, especially for like people your age. You know. थैंक यू Um, like, I love the journey as a whole. It was really good to see someone so young in the journey and so ओके inspirational. आई कांट हियर यू आई थिंक लैग कर गया आपका वीडियो Oh, is it better now? या इट इज अभी अब सुनाई दे रहा है कुड यू रिपीट इट Is my is my voice repeating? Is मेरे को repeat हो गया क्या? नहीं मेरे को क्लियर सुनाई दे रहा है Okay, that's fine because I can hear myself again. अच्छा नहीं आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली अभी
Okay, so I was saying that it was good to see you in the roadies journey, and like, you know, the confidence was so inspiring for so many younger like girls, you know. Thank you so much. Okay, so how do you overcome hard times with work, and just how do you deal with like so much pressure that you get on you? Sorry, how do you? How do you deal with hard times with work and like the pressure that you get that gets put on you for work? Um, I don't know, ऐसे कोई हार्डशिप मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया है. Mhm. बस ये है कि या इफ यू नॉट एबल टू डू समथिंग प्रॉपर, मेरे को खुद हो जाता है इफ आई वांट टू डू समथिंग एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट प्रॉपर्ली, तो फिर मैं खुद उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने लग जाती हूँ. आई थिंक दैट इज हाउ आई वुड डील Mhm. विद इट. बाकी Yeah. हार्डशिप अगर वैसे कह रहे हैं तो व्हेन आई वाज अ किड, तो उस टाइम पे ये हुआ था Mhm. कि आई आई हैड अ फ्रैक्चर ऑन माई लेफ्ट एल्बो. तो उसकी वजह से Yeah. माई लेफ्ट एल्बो का बोन, पूरा जो जॉइंट बोन होता है वो क्रश हो गया था. Mhm. तो Oh yeah. उसकी वजह से वो पूरा डी शेप हो गया. एंड उसके अंदर अब क्या है कि मेरे को बैलेंस करने, जैसे हैंड स्टैंड्स हो गया या कुछ ऐसा, वो मैं अभी भी नहीं कर Mhm. पाती हूँ, तो आई एम वर्किंग ऑन इट. बट काफी Yeah. सारी उस हाथ की मेरी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई थी बिकॉज नर्व डैमेज हो गया था. एंड दैट टाइम मैं थर्ड Mhm. ग्रेड में थी. तो टिल माई एथ, Yeah. जब तक आई केम इन टू एथ स्टैंडर्ड, तो तब तक मैं उसका कुछ कर Mhm. नहीं, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था. बट बाद में जब मैंने लॉन टेनिस वगैरह खेलना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि मेरे Mhm. को काफी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए आई वर्क ऑन इट. तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह करके मैंने उस हाथ की स्ट्रेंथ बिल्ड की. तो बाकी चीजों में भी Yeah. इफ आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, तो आई वर्क ऑन बिल्डिंग माई स्ट्रेंथ इन दैट फील्ड. That's good. That's really good. I mean, again, it's so inspiring for, you know, younger girls, and you're very inspirational for girls your age. So, how do you deal with hate now that you're in the public eye now? You know, like you are somewhat in the public eye after. So, how do you deal with hate? Because obviously, there's gonna be people that love you, and we can see that on your page. There's obviously gonna be people that don't like you so much, and they will try to like put you down by giving rude comments. How do you deal with that? um see, I would say इसने मेरे को हाँ थोड़ा सा बुरा लगता है, but then at Mhm. one point मैंने realize किया कि if the hate that they are giving you is stupid, then you don't have to deal with it. It's as simple as that. Mhm. Yeah. And the people who really know you know कि वो hate सही है या नहीं है, and I think that is all Mhm. that matters to me. That's good. It's fair enough. You know, that's what matters the most. So, what advice do you want to give to kids that want to, you know, pursue something in the creative field or something out of the box, you know, but they're too scared to tell their parents, you know, as you would say, kids that want to pursue something more creative, but they're just scared to tell, you know, their parents. What advice would you give to them? Okay. मैंने भी डिजाइनिंग शुरू किया था, इवन दो मैंने अब Mm-hmm. खुद ड्रॉप किया है बिकॉज आई वांट टू परस्यू लॉ. बट देन आई वुड से Yeah. मेरे को भी डिजाइनिंग, सी पहले तो जो आपका टैलेंट है, जो आपका पैशन है, दैट शुड बी विजिबल टू Mm-hmm. योर पेरेंट्स. मतलब उन्हें एक आइडिया होना चाहिए कि यस Mm-hmm. यू कैन एक्सेल इन दैट फील्ड, या फिर यू कैन परस्यू दैट फील्ड, तभी वो उसके अंदर तुम्हें डालें. एक तो ये चीज, ऊपर दूसरी तुम्हारे को कन्विंसिंग होना जरूरी है. because if you matlab convincing as in you should be able to convey. Okay, you said कि what मतलब and they scared to tell their parents. See, अगर तुम्हारा Yeah. पैशन है तो एक बार पुट कर दो अपना पॉइंट. जैसे मैंने भी अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने डैड को बोला कि डैड आई वांट टू परस्यू डिजाइन. तो ही न्यू कि आई कुड पेंट, आई हैड इस चीज में मेरा हाथ है हल्का अच्छा, तो दैट इज वाई उन्होंने मना Mm-hmm. नहीं किया. ही put it in his list of options जिसमें वो मेरे को आगे भेजना चाहे. बट ऑल आई Yeah. वुड से इसकी स्कैर्ड होने वाली कोई बात नहीं है. यू कैन जस्ट टेल इट टू योर पेरेंट्स. ज्यादा से ज्यादा मना करेंगे एंड अपने उसमें, बट एटलीस्ट यू शुड Mm-hmm. टेल इट टू देम, ताकि बाद में ये ना Yeah. So रहे they कि know. यार आई कुड हैव Yeah. बीन इन दैट फील्ड लेकिन मैंने बताया ही नहीं. Mm-hmm. Yeah.
So you've talked about so many like activities that you do. You do so many things. What is like one passion that you have that you're so passionate about and you're working towards it every single day? पैशन तो मैं कहूँगी इज आर्ट, बिकॉज आई थिंक Mhm. कि मेरा आर्ट एक ऐसी चीज है, कलर्स बेसिकली, कलर्स एक ऐसी चीज है जिससे मैं अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर पाती हूँ। इफ आई एम फीलिंग लो तो भी मैं, इफ आई, जैसे हम ये कहते हैं ना, जस्ट स्पीक योर फीलिंग्स आउट, आई थिंक आई पेंट Mhm. माई फीलिंग्स आउट। तो उस तरीके से वो भी, एंड उसके अलावा जो इफ आई वांट टू वर्क ऑन इट, यू हैव यूट्यूब, यू हैव पिंटरेस्ट, यू हैव पूरा नेट, पूरी दुनिया से आप सीख Yeah. सकते हो। एंड बस उसी तरीके से यू कैन लर्न बहुत सारी चीजें। मैं भी इफ आई वांट टू लर्न कोई नया आर्ट टाइप, अगर मैंने एक ही बहुत बार कर Mhm. रखा है, एंड आई वांट टू टेक, मेरे को कुछ डिफरेंट बनाना है, तो फिर बस सर्च करो, उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो, एंड वो उस पे हाथ आ जाता है। Yeah. Yeah. Yeah, that's good. That's a very good way to like go with it. Okay. So do you want to tell everyone a little bit about your fitness journey? How you got started, what motive, like as you said when you were younger, like you didn't used to exercise as much, but now that you're older, you started. Like, do you want to tell us a little bit about that? ओके, या श्योर। मैं बचपन में आई यूज टू बी ऐसे बहुत फुदकने वाले जो बच्चे होते हैं, जो इधर से उधर जंप ही करते रहते हैं, Mhm. आई यूज टू बी दैट किड। Mhm. बट देन उसकी वजह से यस आई हैड एन इंजरी, एंड मैं काफी टाइम तक कुछ ऐसा मैंने नहीं किया। बट देन लेटर ऑन, जब मेरे को खुद लगने लगा कि नहीं, नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, क्योंकि ऐसे रह के काम नहीं चलेगा, तो बाद में आई टोल्ड माई डैड कि डैड आई नीड हेल्प, बिकॉज शुरू में मैंने खुद भी करने की कोशिश की, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू, आई वॉज नॉट इतना, जो हम कहते हैं ना, डिसिप्लिन फॉर दैट। Mm. तो Yeah. इसलिए आई आस्क्ड माय डैड टू हेल्प मी, एंड बाकी फिर उसके बाद वो थोड़ा सा मेरे लिए भी, वो मेरे ऊपर काफी हार्ड हुए थे इस चीज को लेके। सो Mm. लिटरली एक ऐसा स्टेज था जिसके अंदर वो साइकिल कर रहे थे, मैं उनके साथ में रनिंग कर रही थी, एंड वो बिल्कुल डांट के साथ कि इफ यू स्टॉप यू विल गेट अ किक फ्रॉम बिहाइंड, मतलब नॉट, उन्होंने लिटरली ही कहा था, बट देन या मैंने Yeah. But ऐसे like, वाले तरीके से आई स्टार्टेड रनिंग, एंड मैंने काफी वेट लूज किया। फिर आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, नॉट अंडर अ ट्रेनर, बस बेसिक एक्सरसाइजेस के लिए खुद ही। Mhm. तो फिर उसके बाद जब मैं 12th में आई तो मैंने काफी वेट रिड्यूस कर लिया था, एंड उसके बाद, एंड साथ में आई वाज प्लेइंग लॉन टेनिस आल्सो, तो मेरे को ये लगा कि इफ आई एम प्लेइंग ये, एंड अभी मैं थोड़ा फिट भी हो रही हूँ, तो मेरा खुद मन करने लगा कि व्हाई नॉट एक्सेल इन इट। तो Yeah. इसीलिए मैंने और अपने फिटनेस पे ध्यान मैंने देना शुरू किया। बट अगेन मैं एक स्टूडेंट भी थी, तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दे सकती थी सिर्फ। एंड Yeah. उसके अलावा फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे को रिकग्निशन मिला ही मेरे सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की वजह से। एंड Mhm. फिर क्योंकि मैं एनसीसी में भी थी व्हेन आई वाज इन 10th, तो उसके अंदर भी मेरा काफी अच्छा, ये स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर ही मेरा काफी अच्छा वो था, तो उसकी वजह से आई गॉट और मोटिवेटेड इसी चीज में। तो मैंने ऑब्स्टिकल कोर्सेज भी करने शुरू किए थे, एंड अब बस मेरे ऐसा एक आई अंदर से ही एक फीलिंग आती है कि अगर ये, मतलब इफ आई वॉच समबडी डूइंग समथिंग जो मेरे को लगता है कि यार Yeah. हाँ, एंड ओके, द बिगेस्ट मोटिवेशन आई वुड से इज हार्लिन क्विन, हार्ले क्विन। Oh, yeah. बिकॉज Yeah. बिकॉज उसकी मूवीज देख के पूरे टाइम में को ये लगता है कि ओ गॉड, काश मैं भी ऐसे स्टंट्स कर सकती थी, तो उसकी वजह से मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई। One day. आई नो दैट इज बहुत स्टूपिड, बट ठीक है, वो मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन। Yeah. So अपना होता है, you get inspired by like someone. I get inspired by someone. Oh. या तो मेरे लिए फिर मैंने वो बर्ड्स ऑफ प्रे, वो मूवी देखने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को मार्शल आर्ट्स के अंदर भी जो स्टिक रोटेशन होता है, ये सब मैंने करना सीखा। एंड इसमें रोडीज में देयर इज दिस गाय केविन, केविन ने I was ये just मेरे about को to ask सिखाया। you. Yeah. उसने मेरे को ये सिखाया था। तो हाँ बस ये, एंड फिर आकाश वाज आल्सो देयर, उसने मेरे को फ्लिप्स करने के लिए बेसिक एक्सरसाइजेस सिखाई थी, तो वो अब मैं घर Yeah. पे करती हूँ। तो That's good. या That's तो good. अब बस I've आई एम seen like वर्किंग ऑन, reels that you post here and there.
Sorry. of you? Like, we've seen your reels that you post here and there of you like exercising. Okay, I didn't get you. I'm so sorry. Oh, I was just saying that we've seen your reels that you post अच्छा, of okay. you exercising. Yeah. So that is basically सिर्फ यही करने के लिए, अगर आप किसी को कुछ कूल करते हुए मेरे लिए ये बहुत आई वुड से कूल ही है, बिकॉज अगर मैं किसी को ये करते हुए देखती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि यार आई जस्ट विश मैं भी ये कर सकती, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो इसीलिए मैं वो रील्स भी ऐसे ही डालती रहती हूँ कि Yeah. हो सकता है मे बी समबडी किसी को अगर वो देख के ऐसे मन करे कि यार आई विश मैं ये कर सकूं, तो वो वाला थिंग. A lot of people are asking who's your favorite gang leader and Roadies? I don't have a favorite gang leader, I would say, but हाँ, जो मेरे को जिनको मैं सबसे वहां पे पसंद करती हूँ, आई गेस आई डोंट, मतलब नॉट वैसे पसंद करना, बट हाँ आई थिंक काफी सारी चीजों में आई वुड से रफ्तार सर इज गुड. अगर एज अ मेंटोर वहां पे अगर मैं किसी को चाहूंगी तो फिर दैट वुड बी रफ्तार सर या निखिल सर. Fair enough. Were your expectations of meeting the leaders like high or like low, or did they meet your expectations when you met them? ओके, एक चीज आई वुड वांट टू टेल यू, मैंने अपनी लाइफ में कभी रोडीज नहीं देखा है, सो दिस वाज द फर्स्ट सीजन, क्योंकि मैं इसमें थी, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड वाचिंग इट, एंड या तो मैंने कभी Have you watched your own season back? या दैट तो आई हैव सीन, बिकॉज मैं क्यूरियोसिटी थी कि मैं क्या करके आई हूँ वो देखने का, बट आई इससे पहले इस सीजन से पहले आई हैव नेवर सीन रोडीज. That's fair enough. हाँ, तो इसलिए आई कांट से कि expectations. Yeah, and I feel like that's good to go. If you put too much like hard work, you can actually make it. You don't have to be like a fan from day one, you know. Okay, I'm so sorry, but बिल्कुल भी आवाज नहीं आया. Can you hear me now? Yeah, I can hear you up, but पहले नहीं आया था. Okay, I don't know. I think there's some connection problem. Okay. Okay. Can you repeat? So moving on. Yeah, I was just saying that just goes to show that like you don't have to be a fan from day one. You can, you know, get through your with your hard work and like motivation and passion, you know. Yeah. Okay. So moving on to one of the last questions now. If you could summarize your roadie journey in like a sentence, how would you say it was? Okay, I would say it was a learning experience. I mean, because काफी अच्छा भी था एंड काफी अजीब भी हो गया था मेरे लिए वहां पे, तो बट देन दोनों चीजों से मैंने काफी कुछ सीखा, सो आई वुड से इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आई थिंक दैट इज ऑल आई कुड से टू दिस. एंड बाकी फिर सॉरी Sorry, I was just asking about last week's episode during the road out, you know. I would say see वहां पे ना काफी सारे और लोगों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड उसकी वजह से आई थिंक लोग ढंग से जज नहीं कर पाए, बिकॉज सपना ने जो बोला था मेरे बारे में, बाद में मेरी उससे बात हुई थी एंड वी सॉर्टेड थिंग्स आउट एंड वी रियलाइज कि जिस तरीके से मुझे आरुषि के बारे में जो फील हुआ था जर्नी पे, उसी तरीके से सपना को मेरे बारे में फील हुआ था. द ओनली थिंग, मी एंड आरुषि सॉर्टेड इट आउट ऑन द जर्नी एंड मी एंड दूसरे उसमें मेरे को और सपना को वी डिडंट गेट द टाइम टू सॉर्ट थिंग्स आउट. बस दैट इज ऑल आई वुड से. बाकी it was fine. The only thing I'm happy about is कि I came off clean. मतलब now everybody knows कि मैंने क्या किया था and क्या नहीं. So. And you've had the time to explain yourself as well. Yeah. That's fair. So the last question now. What was your most favorite part about roadie from the beginning of your journey to the end of your journey? Okay, the best part the best, there were a lot of things actually. मैंने काफी सारे दोस्त बनाए and I would say Kevin and Arushi,
ये दोनों Yeah. सब ऐसे लोग मुझे वहां पे मिले हैं जिनको मैं एक्चुअली कह सकती हूँ कि इनसे अच्छा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा है। देखो जर्नी में जो भी दिखाया जाए वो जर्नी का पार्ट है, बट अब अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो आई वुड से कि यार दीज आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल्स आई एवर मेट। तो Yeah. एंड उसके अलावा हाँ बस काफी सारी अपॉर्चुनिटीज थी जिसके अंदर मैं अपने आप को शो कर पाई, प्रेजेंट कर पाई कि यस आई कैन डू दिस। दैट वाज अ गुड पार्ट। एंड उसके अलावा वहां पे कैंपिंग थी और मेरे को कैंपिंग बहुत अच्छी लगती है, तो यार दैट वाज आल्सो अ गुड पार्ट। और उसके अलावा फिर जो हमारे वो थे बी द चेंज टास्क थे उसके अंदर जहाँ पे हमें बच्चों से इंटरेक्ट करना था। एंड उसके अलावा हमें जहाँ पे ओके हमने पूप केक्स, काउ डंग के केक्स भी बनाए थे। तो That was the best. हाँ वो शुरू में काफी अजीब था लेकिन बाद में आई रियलाइज कि उसमें हमने काफी इंजॉय किया था एक्चुअली। तो Yeah. हाँ तो ये I feel काफी like that was सारी one of the best episodes. हाँ दैट वाज वो उसके अंदर It हम was लोग very जिस enjoyable तरीके से to watch. हम यस एग्जैक्टली हम उसमें जिस Yeah. तरीके से गैंग लीडर्स के साथ भी हम लोगों ने किया था सब कुछ, एंड लीडर्स के साथ में सॉरी जो भी कुछ हमने किया था Yeah. वो काफी Yeah. ऐसा लगा था कि ओके सब एक ही लेवल पे आके खेल रहे हैं एंड वी वर एक्चुअली एंजॉयिंग इट। That's good. Okay, so that was it. I just want to say thank you so much for coming and joining. I can see a lot of people saying thank you and asking questions as well. But I just want to say thank you to you for coming and taking time out to talk to me. It was a great pleasure getting to know you and talking to you. And I want to wish you all the best for your future. Thank you so much. And Hopefully we can talk again. Yeah. sorry Hopefully we can talk again in the future and maybe come back and yeah sure talk पक्का more. definitely I really liked ऐसे आज ये वाला एक इंटरैक्टिव सेशन। एंड एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगी रिगार्डिंग अभी जर्नी के बाद एंड उसमें जो भी कुछ हुआ। पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगी जो मुझे मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट पता नहीं आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस। एक चीज ये है कि मैंने देखा कि काफी जो अगेन हेट मैसेजेस जो आप पहले कह रहे थे नॉट ओनली फॉर मी, अब जैसे प्रतिभा दी है या फिर निशा है या कोई भी है या कोई गैंग लीडर है, जैसे हमने देखा है कि नेहा मैम पे काफी सारे मीम्स वगैरह बने हैं। सो आई थिंक एक तरीके से ये साइबर बुलिंग है, क्योंकि अगर आप किसी के अगेंस्ट एक ऐसा हेट क्रिएट कर रहे हो तो वो उस पर्सन को मेंटली बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है, भले ही एंड यू हैव नो आइडिया कि जो शो पे होता है वो बहुत अलग है एंड रियल लाइफ में जो है वो लोग बहुत अलग होते हैं। तो एक तरीके से जो आप उनको कह रहे हो वो उन्हें रियल लाइफ में भी इफेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। सो दैट इज वन थिंग विच आई वुड वांट टू से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी दिस आई डिड नॉट लाइक दिस कि साकिब ने भी वोट आउट के बाद उसने मेरे वोट आउट के बाद उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी विच सेड कार्मा इज बैक, विच आई ठीक है डाल दिया। वो एक तरीके से बहुत इमेच्योर चीज थी करने के लिए, क्योंकि एक गाय 25 years old डूइंग दैट इज थोड़ा सा मैंने जज किया था ऑनेस्टली, ठीक है, बट yeah but I just want to say कि ये ऐसी चीजें हैं when you're a public figure so you should try and put in positive vibes rather than ऐसे किसी के बारे में negative। there are two things, एक होता है healthy criticism, एक होता है humiliating somebody। so healthy criticism is always good because उससे आप दूसरे को correction भी लगा रहे हो लेकिन आप उससे बुरा भी feel नहीं करवा रहे हो, and humiliating is just putting somebody down। was कि I tried to be as transparent as I could be पूरे जर्नी में खेलते समय, बट एक पॉइंट पे आई जस्ट फेल्ट ये कि अगर मैं इतना ट्रांसपेरेंट भी हो रही हूँ तो भी पीपल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ट्रस्ट समबडी ओनली बिकॉज दे वांट टू विन अ गेम, बिकॉज एंड आई थिंक दैट इज द लास्ट थिंग विच यू शुड डू इन एनीथिंग दैट अगर आप आगे फ्यूचर में भी कुछ करना चाह रहे हो तो I think you should be perseverant, you should have the ability to trust somebody, you should be able to gain किसी का trust and maintain that।
बट ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें, क्योंकि द टॉपिक इस बार जो थीम था दैट वाज रेवोल्यूशन, एंड आई थिंक इफ यू एक्चुअली वांट टू रेवोल्यूशनाइज यूथ को, तो आपको शुरू से उनके अंदर यही चीजें डालनी चाहिए, because till the time you Yeah. can't change the mentality of the youth, you can't revolutionize the country. Yeah. So okay, ठीक है, बहुत बड़ा था, but I just wanted to say this. No. What you said was completely right. You know, like so many things are now being said about certain people. You know, from the show. Like one of them being Nail Man, and like I feel like a lot of wrong things have been said about her, and we don't know how like she's taking it personally. She can come out publicly and apologize, but we don't know what's See, going through her that mind. हाँ, वो क्या है ना, अब see, she is one person. ऐसे अब हम उन्हें मना नहीं कर सकते till the time we can't convince her कि मैम जो आपका तरीका है वो शायद ठीक नहीं. See, I don't know what to say to this, but all I'm saying is कि ठीक है, उन्होंने जो कहा है, agree to her या फिर उनसे मत करो अभी, but at least don't create एक negative vibe. उन्होंने मेरे को भी बहुत कुछ कहा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, but that doesn't mean कि उनके बारे में negativity फैलाऊंगी. ठीक है, तो बस that is all that I want to say. And thank you for saying that. So, again, thank you for coming and joining. It was great talking